Good morning, students. Today we are going to start with the revision part. So I'm starting the revision from the measurement of national income itself. There are two methods to measure national income: value added method, income method, expenditure method. I will be revising the formula of all these. So in case you have not been attentive in the class, please be very attentive and do write down the equations along with me, right? One thing you should know is that with the help of value added method and also with the expenditure method, we always arrive at GDP MP, राइट हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की वैल्यू पता चलती है देन मेकिंग ऑफ आवर गोल्डन रूल्स वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डोमेस्टिक और नेशनल income. Whereas in case of income method, with the help of first equation, we arrive at domestic income, that is NDP-FC. ये भी आपको पता होना चाहिए कि domestic income कौन सा aggregate है. This is NDP-FC and national income is NNP-FC, right? So let's see how do we estimate national income using value added method. बेटे वैल्यू एडेड मेथड में वी टेक सम टोटल ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस. इन केस यू आर गिवन वैल्यू addition of different firms or different sectors, you add it to get GDP MP. Or if you are not separately given value addition of this sector, value added by this sector, which means you arrive directly at GDP MP. How do we calculate GVAMP? Firstly, we take value of output. There are different ways to calculate value of output. It depends upon the data given to you. If you are given output produced in units, you multiply it with prices. याद है बेटे? Price into quantity produced. If you are given quantity sold and price per unit, you multiply price with quantity sold and you add change in stock to it. Third way, you may be given sales. To sales, again you add change in stock, you get value of output. If you are given domestic sales, then along with change in stock, you need to add exports. These are the different ways of calculating value of output. One more way, उसका हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया है. वो क्या करते हैं, जितने भी फैक्टर कॉस्ट हैं और नॉन फैक्टर कॉस्ट इनपुट्स हैं उनको हम ऐड कर देते हैं. दैट गिव्स अस वैल्यू ऑफ आउटपुट. ठीक है, तो उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर दें. व्हाट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन? बेटा इट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स. जो हम नॉन फैक्टर इनपुट्स खरीदते हैं, दो तरह के इनपुट्स होते हैं हर फॉर्म के, फैक्टर इनपुट्स एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट्स. जो नॉन फैक्टर इनपुट्स हैं जिनको हम सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स भी कहते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर may also be given by the name of single use producer goods, or you may be given purchase of raw material. Then in this case it is your intermediate consumption expenditure. If you are given purchase of raw material from domestic economy, then in order to arrive at intermediate consumption expenditure you add imports to it. If you are given purchase of raw material, then you are given expenses on fuel, you add this also. If you are given purchase of machinery, machinery is a factor input. इसको नहीं लेना, मैंने लिखने के बाद क्रॉस कर दिया, देखो. ठीक है, क्योंकि आपको कई बार परचेज वर्ड से कंफ्यूजन हो जाती है, आपको लगता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज परचेज. तो बेटे इट इज द परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स ओनली. फैक्टर इनपुट्स जैसे कि कैपिटल गुड्स वो सालों साल हमारे पास रहते हैं, उनको हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का हिस्सा नहीं मानते हैं. ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर माइनस कर दीजिए, आपके पास जीवीएमपी एंड जीडीपीएमपी आ गया. उसमें से डेप्रीसिएशन माइनस कर दो, नेट टर्म्स में आ गई. एनआईटी माइनस कर दिया, फैक्टर कॉस्ट पे आ गई. नीफा ऐड कर दिया, नेशनल टर्म्स में आ गए. राइट, you write down these equations side by side.
Even if you have written it earlier, you need to write it. आपकी you will be able to memorize it easily. Then next is beta income method. Income method is simplest method. You simply add factor incomes, you arrive at domestic income. What are the components of factor income? Compensation of employees, operating surplus, mixed income. What is compensation of employees? It includes wages and salaries in cash, in kind, employer contribution to social security schemes, and any other allowances given by employee to employer. Operating surplus, defined as income from property and entrepreneurship. It is sum total of rent, royalty, interest, profit. Right? Third one is mixed income, which is the income of self-employed people or unincorporated enterprises. ठीक है? नेक्स्ट बेटे, इन तीनों को ऐड कर दिया. अगर ये नहीं गिवन, इनके कंपोनेंट्स ढूंढो, उनको ऐड करो, आपके पास आ गया डोमेस्टिक इनकम. In order to convert it into national income, you add NEFA to it, which is net factor income from abroad. Now, if we measure national income at expenditure stage, it is known as expenditure method or disposal method. So expenditure method mein, what do? We take sum total of final expenditures incurred by the different sectors of the economy. Which are the different sectors? There is one household sector, there is one firm sector, there is another government sector, and rest of the world sector. So ये सब सेक्टर्स का फाइनल एक्सपेंडिचर ऐड कर लेते हैं. अब जो हाउस होल्ड है उसके एक्सपेंडिचर को कहते हैं हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को कहते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. फर्म सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. एंड अबाउट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट्स एक्सपेंडिचर इज नोन एज नेट एक्सपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स. अगेन, अगर इनके बेटे आपको कंपोनेंट्स गिवन है तो कंपोनेंट्स ऐड कर लीजिए, अगर ये गिवन है तो टोटल ऐड कर लीजिए, यू विल गेट जीडीपीएमपी. ध्यान सिर्फ इसी बात का रखना है कि टोटल भी ऐड कर लो और कंपोनेंट भी ऐड कर लो, नहीं. That will lead to double counting, overestimation of national income. Gross domestic capital formation is further divided into gross domestic fixed capital formation and change in stock, which is inventory investment. This is further fixed investment. Fixed assets में इन्वेस्टमेंट कौन कौन करता है बेटे? तीनों सेक्टर्स करते हैं हमारी इकोनॉमी के. हाउस होल्ड सेक्टर भी करता है, फर्म सेक्टर भी करता है और गवर्नमेंट भी करती है. जो फर्म सेक्टर करता है उसकी इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. क्या करता है? ये बिल्डिंग बनाता है, मशीनरीज लेके आता है, प्लांट लगाता है, ट्रैक्टर खरीदता है. ये जो फर्म सेक्टर इन्वेस्ट करता है इसको हम नाम दे देते हैं बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. देन गवर्नमेंट ऑल्सो मेक्स इन्वेस्टमेंट. डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स, फ्लाईओवर्स, इनके ऊपर जो गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट होती है उसको हम नाम दे देते हैं गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट. थर्ड इज बेटे हाउस होल्ड्स. हाउस होल्ड कौन सी इन्वेस्टमेंट करते हैं? दे मेक देयर ओन हाउसेस. तो जो घर के ऊपर वो खर्चा करते हैं, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड. दिस इज अनदर कंपोनेंट ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. इसमें आप इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऐड कर दो. इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बेटे वो इन्वेस्टमेंट है जो हमने स्टॉक में की हुई है. स्टॉक could be of raw material, it could be of semi finished goods, it could be of finished goods. ठीक है? Inventory investment is calculated as closing stock minus opening stock, or you may be given the name as change in stock or even unsold stock. ठीक है? तो इसमें इन तीनों को ऐड करके इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इसमें ऐड कर दीजिए, आपके पास आ गई ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. अगर बेटे आपको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है तो जब आप इन चारों को ऐड करोगे यू विल अराइव एट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. अगर ग्रॉस में है तो जीडीपीएमपी. आपको चाहिए नेशनल इनकम. नेशनल इनकम कौन सा एग्रीगेट है? एनएनपीएफसी. तो आप जी ग्रॉस है, नेट चाहिए माइनस डेप्रिसिएशन. मार्केट प्राइस है, फैक्ट्री की कॉस्ट चाहिए माइनस एनआईटी.
डोमेस्टिक है, नेशनल इनकम चाहिए प्लस नीफा. Here I have written 3 questions. We'll be solving them one by one. So you have written them. So let's see. NVAFC हमें कैलकुलेट करनी है. फर्स्टली हमारे पास जो इक्वेशन है उससे हमारे पास GVAMP होती है. नो डाउट हम एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप करना प्रेफर करूंगी, ठीक है, क्योंकि अभी आपको इतनी प्रैक्टिस नहीं हुई. तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, हाउ डू वी कैलकुलेट? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. लेट्स सी, इज वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन? यू आर गिवन सेल्स. सो आई एम राइटिंग इट साइड बाय साइड. Sales में when we add closing stock and deduct opening stock, we get value of output. So this is our value of output. Now, what do we have to deduct from it? Intermediate consumption expenditure. So intermediate consumption expenditure as such नहीं लिखा हुआ, आपको नहीं दिया हुआ as such, लेकिन आपको क्या given है? Purchase of intermediate product. So this is obviously intermediate consumption. You are also given purchase of machinery. Is it a part of intermediate consumption? Shall we add it to intermediate products? No. Purchase of machinery is a factor input. So we will not add it. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया GVAMP. This is 520, 490 minus 300, 190. But we've been asked to calculate NVAFC. We have GVAMP. We have gross. We want net. How do we calculate net? We have to deduct depreciation. Depreciation is not given here. Then we want market price. We have to arrive at factor cost. Factor cost is exclusive of net indirect taxes. तो indirect taxes minus कर देते होते हैं, subsidy को add कर देते हैं. So from here we can see we are not given the data of consumption of fixed capital, that is depreciation, and there is no way to find it out. Hidden भी नहीं है कहीं पर भी. So let's assume it to be 0. 190 minus 0. Indirect tax also not given. So let it be 0. Subsidy 40. So rupees 230 lakhs is your NVAFC. Clear? ठीक है? Shall I rub it? Now, solution to second question. You have to calculate GVAMFC, but we know how to calculate GVAMP, value of output. Not given, sales are given. So take sales, add change in stock to it. It's given in minus, तो माइनस हो जाएगा ये. इसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करते हैं. आपको गिवन है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, which is 250. You are also given import of raw material. Should we add it to get intermediate consumption expenditure? बोलिए, import को add करना है हमने. I'm waiting for your answer in the chat box. Okay, now is it visible, Sukhman? ठीक है बेटे, रॉ मटेरियल का इंपोर्ट हम नहीं लेंगे. क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो परचेजेस हैं वी अज्यूम इट टू बी टोटल, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं किया, स्पेसिफाई नहीं किया. परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया है, फ्रॉम अब्रॉड है, टोटल परचेजेस है इसका मतलब. तो इसका मतलब इंपोर्ट इसमें ऑलरेडी एडेड है, तो हम नहीं लेंगे. ये आ गया बेटे हमारे पास GVAMP. 360 में से हमने 250 को माइनस कर दिया, हमारे पास आ गया rupees 110. Right? We have to calculate GVAFC.
वी हैव GVAMP, तो मार्केट प्राइस है, फैक्टर कॉस्ट चाहिए माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी। अब यहाँ पे बेटे देखो, इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं गिवन, क्या गिवन है? सेल्स टैक्स गिवन है, एक्साइज ड्यूटी गिवन है। बोथ आर इनडायरेक्ट टैक्सेस, बोथ आर द पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो हम इन दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे, ठीक है? किस किस को? एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स। अब अगर सब्सिडी गिवन है उसको ऐड कर देते हैं, सब्सिडी नहीं गिवन है तो 110 में से आप 20 and 30 which is 50, तो आपके पास आंसर आ गया ₹60 lakhs, right? Shall I rub it बेटे? ओके, थर्ड क्वेश्चन, वी आर टू कैलकुलेट एनवीएफसी, लेकिन हमें जीवीएमपी की इक्वेशन आती है, ठीक है? जीवीएमपी हमारा क्या होगा? सेल्स, वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं गिवन तो हम सेल्स में चेंज इन स्टॉक ऐड कर देते हैं। चेंज इन स्टॉक नहीं गिवन बट वी आर गिवन क्लोजिंग स्टॉक as well as opening stock, we add it, we arrive at value of output. Then you are also given 300 worth rupees goods were used for self consumption, even if these were used by self consumption for the producers, but these were being produced in the country, so this will also be added, used for self consumption. Anyone having any doubt? बेटे हमें जीडीपी फाइंड आउट कर रहे हैं ना, जीडीपी मतलब जो डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुई है, तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुई है चाहे प्रोड्यूसर ने इसको अपने लिए प्रोड्यूस किया है। फिर उसमें से बेटे हमने क्या करना है, ये हमारा आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। इसमें से हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है आपको, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कितना गिवन है? 1050, ठीक है? उसके अलावा और कोई चीजें नहीं यहाँ पर यूज होनी है, सो यू जस्ट एड इट 2300, 1950, 2250, आई गेस इट्स 1150। एनवीएफसी कैलकुलेट करना है बेटा, मैं सीधा लिख रही हूँ यहाँ पे, $1150 हमारा क्या है? जीवीएमपी। हमें नेट चाहिए तो हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन CFC, राइट? फिर हमें फैक्टर कॉस्ट चाहिए, मार्केट प्राइस है हमारे पास, फैक्टर कॉस्ट चाहिए, तो हमें क्या करना है? इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देना है। इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पे कौन सा है? कैन एनीवन टेल मी? इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है? हरी अप बेटे। इनडायरेक्ट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी इज इनडायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है तो इसको हम नहीं कंसिडर करेंगे, राइट रसिका? राइट। -60 प्लस सब्सिडी नहीं गिवन है तो नहीं ऐड करेंगे। हियर इज योर आंसर। सो ओके आकृति, ये मैं क्वेश्चन आपको कल करवा देती हूँ, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। ओके, Anushka has also sent one question that I am going to get done now.